Hello and welcome back to this channel. Dear students, this is the session for CRIP revision of stability analysis and root locus. It is the unit number 3 from the subject control system. From the exam point of view, first we will discuss one theory question. The question may be like this: define stable system, unstable system and marginally stable system, or explain the stability of a system. In every case we have to apply certain input. Recall the things. Input in control system is denoted by R of t. R of t का मतलब है रेफरेंस इनपुट. तो CS में कंट्रोल सिस्टम में इनपुट का नोटेशन है R of t, और जो आउटपुट आ रहा है दैट इज डिनोटेड बाय C of t. दिस नोटेशन C of t इज कॉल्ड कंट्रोल्ड आउटपुट. अब देखो हर एक डेफिनेशन में मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं. फर्स्ट इज फॉर स्टेबल सिस्टम, सेकंड इज अनस्टेबल, थर्ड इज क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम. अब in every case I am going to apply bounded input signal. Meaning of this word bounded मतलब कुछ finite input apply करना है. So if you apply finite input, this arrow indicates you are going to apply this input, finite input to some system. अगर finite input apply किया और ये system के output का ग्राफ है, if you are getting the graph like this मतलब ग्राफ decrease होता है, so it remains, it goes on decreasing. That means you are getting some bounded output, कुछ finite output आ रहा है. Make the thing simple. अगर finite input apply करेंगे और finite output आ रहा है, then it is called stable system. Second diagram, same logic. हम लोग finite input apply कर रहे हैं, मतलब bounded input apply कर रहे हैं. Output goes on increasing, जैसे इस डायग्राम में देखा है. Output goes on increasing without any limit on it. मतलब आउटपुट पे कोई बाउंड नहीं है. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, सो इट इज कॉल्ड अनस्टेबल सिस्टम. थर्ड केस, similar input I am going to apply to some system and the output remains constant within certain bound. Constant in the sense एक range में output रहता है. So this is called critically stable system. One more type of stability is there, that is conditionally stable system. It is same as the normal stable system. हम लोगों ने क्या लर्न किया, bounded input apply करेंगे और bounded output आ रहा है तो उसको stable system बोलेंगे. This condition is satisfied if and only if certain other conditions in that particular system are applicable, then it is called conditionally stable system. मतलब कुछ conditions अगर satisfy है और उसके बाद bounded input apply करेंगे और bounded output आ रहा है तो उसको बोलेंगे conditionally stable system. हाँ, इससे पहले मैंने इसके ऊपर राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अलग से वीडियो क्रिएट किया है. सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. इस वीडियो में एक क्विक रिवीजन का वीडियो है. सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या वेरिएशंस न्यूमेरिकल्स में पॉसिबल है. सो दिस इज the given numerical and it is asked to check the stability using Routh criteria. Sometimes the question is like this: check the stability using Routh-Hurwitz criteria, but at the same thing. ये given equation है. Recall the things. जो पहला कोएफिशिएंट है, मतलब पहला टर्म है s⁴, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो पहले 1 लिखना है, बाद में अल्टरनेट कोएफिशिएंट लिखना है. मतलब ये स्किप करना है, फिर 7 लिखना है, फिर ये स्किप करना है, फिर 3 लिखना है. दिस इज फर्स्ट रो. सेकंड रो में पहला हमने ये 1 लिया था, अब सेकंड कोएफिशिएंट लेना है, सेकंड फिर फोर्थ ऐसे. सो इट विल बी 9 4. यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 0 असाइन करेंगे. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है. इट विल बी 9 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 1, मतलब 63 माइनस 4 59 अपॉन 9. देखो 9 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 9. तो ये कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6.55. ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. इसके लिए 9 इंटू 3 27 माइनस 1 इंटू 0 अपॉन 9. सो 27 अपॉन 9 मतलब ये 3 आ जाएगा. यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं इसलिए डैश लिखेंगे या 0 लिखेंगे. फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन 6.55. तो ये कैलकुलेशन का आंसर आएगा -118. ये वैल्यू 0 आएगा और ये आंसर 3 आएगा. ये कैलकुलेट करने के लिए दिस इंटू दिस माइनस ये 6.55 इंटू 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -0.118. ये याद रखना है, ये टर्म से डिवाइड कर ले तो ये आंसर 3 आएगा. रूल बहुत सिंपल है. जो पहला कॉलम है, दिस इज कॉल्ड द राउथ एरे. जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सब साइंस पॉजिटिव चाहिए. सो देयर इज वन नेगेटिव साइन. सिंस देयर इज वन नेगेटिव साइन, सिस्टम इज अनस्टेबल. अब कितने बार साइन चेंज हो रहा है? वेरी सिंपल ट्रिक. जैसे देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है. मतलब
अगर ये कंसिडर करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव ये एक बार साइन चेंज हो गया, फिर ये निगेटिव से पॉजिटिव मतलब और एक बार साइन चेंज होगा. सो 2 times चेंज इन साइन टेक्स प्लेस. इट इंडिकेट्स दैट 2 poles are at LHS, are at RHS. याद रखना है कंसेप्ट, जितने बार साइन चेंज हो रहा है उतने पोल्स RHS में आ जाएंगे. अब राउथ एरे के प्रॉब्लम में अलग अलग वेरिएशंस क्या है उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं. सपोज दिस इज द गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन रिमेन्स सेम, चेक द स्टेबिलिटी यूजिंग राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया. एज यूजुअल मैंने ऑलरेडी राउथ एरे लिख के रखा है. देखो पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो शुड नॉट बी जीरो. ये जीरो आ रहा है पहला एलिमेंट, लाइक द प्रीवियस सम. ये वैल्यूज मैंने लिखे, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू डू द कैलकुलेशन. पहला एलिमेंट अगर जीरो आ रहा है तो उसके लिए 2 टेक्निक्स है. फर्स्ट टेक्निक, जहां पे जीरो आ रहा है वो वहां पे इप्सिलॉन लिखना है, वेयर इप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल वैल्यू. फिर ये वैल्यू जीरो नहीं है, इप्सिलॉन है, ऐसा कंसीडर करके राउथ एरे कंप्लीट करना है. उसके बाद जहां पे भी इप्सिलॉन है वहां पे लिमिट एज इप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो अप्लाई करना है और सिर्फ साइंस देखने हैं, प्लस माइनस जो भी साइन आ रहे हैं वो पहले कॉलम में मार्क करना है. बट दिस इज द लेंदी मेथड. देयर इज वन सिंपल टेक्निक, वन सिंपल मेथड. जैसे यहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब पहला एलिमेंट जीरो आ रहा है. इन सच केसेस डिसकंटिन्यू दिस एरो एंड रिप्लेस एवरी एस. मतलब जो जहां पे अब ये जीरो आ रहा है तो ये अरे कैंसिल करेंगे और गिवन इक्वेशन में जहां जहां एस है वहां पे रिप्लेस एवरी एस बाय 1 बाय जेड. राइट डाउन द न्यू इक्वेशन. अब देखो ये क्यू ऑफ एस का इक्वेशन है, आई विल राइट द नोटेशन एज क्यू ऑफ जेड. जहां एस है वहां 1 बाय जेड पुट करना है, तो ये एस रेस टू 4 है तो ये टर्म हो जाएगा 1 बाय जेड रेस टू 4. एक्चुअली इट इज 1 बाय जेड ब्रैकेट रेस टू 4, लेकिन 1 रेस टू 4 इज 4, सॉरी 1 रेस टू 4 इज 1 एंड जेड रेस टू 4, दिस बिकम्स द डिनोमिनेटर. तो ये पहला टर्म आ गया. प्लस सेकंड, ये एक्चुअली आएगा 1 बाय जेड ब्रैकेट क्यूब, मतलब 1 क्यूब अपॉन जेड क्यूब. 1 क्यूब इज 1 अपॉन जेड क्यूब. लाइकवाइज 2 बाय जेड स्क्वायर प्लस 2 बाय जेड प्लस 1. अब इसका एलसीएम लेना है. एलसीएम नेचुरली जेड रेस टू 4 आएगा, तो एलसीएम मैं पहले लिखता हूं, दिस इज जेड रेस टू 4. ये एलसीएम आ गया. अब पहला टर्म 1 आ जाएगा, फिर दूसरा टर्म ये जेड क्यूब है तो प्लस जेड प्लस तीसरा टर्म ये 2 एज इट इज और यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो इट बिकम्स जेड क्यूब. हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, प्लस दिस इज जेड स्क्वायर प्लस ये 2 अपॉन जेड है तो इट बिकम्स 2 जेड क्यूब प्लस जेड रेस टू 4. और ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, इट इज इक्वल्स टू 0, सो नेचुरली दिस इज इक्वल्स टू 0, सिमिलरली दिस इज इक्वल्स टू 0. तो ये जेड रेस टू 4 0 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनल इक्वेशन ऑफ क्यू ऑफ जेड विल बी, देखो ये जेड रेस टू 4 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा. हमेशा इक्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब मैक्सिमम पावर पहले लिखना है. तो इट बिकम जेड रेस टू 4 प्लस 2 जेड क्यूब प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1. अब ये कंसिडर करना है कि दिस इज द गिवन इक्वेशन, इससे रिलेटेड एरे तैयार करना है एज इफ यू आर सॉल्विंग अ न्यू न्यूमेरिकल. ये पहला कोएफिशिएंट है 1 जेड रेस टू 4 का, तो पहले एंट्री में 1 लिखता हूं, फिर अल्टरनेट यहाँ का लिया मैंने, फिर अल्टरनेट कोएफिशिएंट लिखना है, सो इट बिकम्स 1 2 1. उसके बाद सेकंड कोएफिशिएंट ये लेना है, फिर अल्टरनेट लेना है, सो इट बिकम्स 2 1. यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है इसलिए 0. वी नो द यूजुअल प्रोसीजर, ये कैलकुलेशन करने के लिए 2 into 2 minus 1 into 1 upon 2, तो ये आंसर आ जाएगा 1.5. दिस आंसर इज 1. यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है इसलिए डैश असाइन करेंगे. नेक्स्ट आंसर इज -0.33, फिर ये आंसर 0 आ जाएगा और ये आंसर 1 आ जाएगा. So I am directly writing the values. I hope you are aware how to do the calculation. अब नॉर्मल रूल्स अप्लाई करने हैं. जैसे देखो फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहा है, कितने बार साइन चेंज हो रहा है, यहाँ से एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और फिर से नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन हो गया. सो सिस्टम इज अनस्टेबल बिकॉज 2 times साइन चेंजेस टेक प्लेस and that means there are 2 poles at the RHS. Let us discuss one more type of special case of Routh criteria. Suppose this is the given equation, question remains same, check the stability or comment on the stability. ये मैंने राउथ एरे बना के ऑलरेडी रखा है. अब देखो ये जो पूरे एलिमेंट है, लास्ट रो, चेक द लास्ट रो में ऑल द एलिमेंट्स आर 0. डू नॉट गेट कंफ्यूज. इससे पहले का केस क्या था, सिर्फ पहला एलिमेंट 0 है, बाकी नॉन 0 है.
इसमें ऑल द एलिमेंट्स इन वन रो ऑफ एन एरे आर जीरो। ऐसे केसेस में आप लोगों को कुछ अलग टेक्निक यूज करना है। सिंस ऑल द कोएफिशिएंट्स आर जीरो, जैसे देखो हमें रूल पता है, ये जो रो है फर्स्ट रो इट इज फॉर s⁴, सेकंड इज फॉर s³, थर्ड इज फॉर s², fourth is for s⁴, and if you write one more it will be s⁴. s⁴ का पूरा रो जीरो आ रहा है, उसके ऊपर का जो है दैट इज द रो फॉर s², उससे रिलेटेड एक इक्वेशन तैयार करना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे तैयार करना है, देखो ये सब जीरोस का रो आ रहा है, इसके ऊपर का रो मतलब ये वाला रो, इसका कोएफिशिएंट है s², तो ये पहला वैल्यू 10 है, ऐसे लिखना है 10 इंटू s² मतलब ये आएगा 10 s² प्लस सेकंड एलिमेंट जो है एज इट इज लिखना है, इसके साथ s से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पहला एलिमेंट 10 था, 10 इंटू s² किया मैंने, जहां पे जीरो आ रहा है उसके ऊपर करो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 10 है, ये 10 it will not be getting multiplied with s, it will remain as it is, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन टेक डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। सो इफ यू टेक द डेरिवेटिव दैट मींस d by ds ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये आएगा 10s² का डेरिवेटिव आएगा 20s, और ये टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑक्सिलरी इक्वेशन का इसका आंसर आया 20s। अब क्या करना है, ये जीरो का रो था, इसमें से आंसर डेरिवेटिव का है 20s, तो पहला s⁴ का जो पहला वैल्यू है ये मैंने डिलीट किया जीरो का रो, और यहाँ पे 20 लिखना है। why 20, why with s⁴, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा है 20s, s मतलब s⁴, यहाँ पे 20 आ गया, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं है तो यू कैन राइट जीरो और यू कैन मार्क डैश। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, इफ यू डू द कैलकुलेशन दिस वैल्यू इज 10। बाद में इसके बाद एक बार ये कंप्लीट होगा तो नॉर्मल रूल्स अप्लाई करना है। इज देयर एनी साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ एन एरे, देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ एन एरे, सो सिस्टम इज स्टेबल। लेकिन ये मार्जिनली स्टेबल है या नहीं ये भी चेक कर सकते हो आप। ये कैसे चेक करना है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेटेड टू जीरो, तो इससे आएगा 10s² प्लस 10 इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर 10s² इज इक्वल्स टू -10, देयरफॉर s² इज इक्वल्स टू -1, ये 10 यहाँ पे ट्रांसफर किया, देयरफॉर s² इज इक्वल्स टू j² इंटू 1। याद रखना है टेक्निक, जहां पे भी माइनस साइन आता है ये एक्चुअली आंसर है -1, इट कैन बी रिटन एज j² इंटू 1, मतलब माइनस साइन एलिमिनेट करने के लिए j² लिखना है 1 एज इट इज, तो ये मैंने ऐसे लिखा j² इंटू 1। इफ यू टेक स्क्वायर रूट तो ये आएगा प्लस माइनस j इंटू 1। स्क्वायर रूट लेने के बाद मैथमेटिकली यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आएगा, मतलब यू आर गेटिंग टू वैल्यूज, टू पोल्स, one is at plus j into 1, another is at minus j into 1. These are called complex conjugate poles, मतलब प्लस माइनस साइन से और वैल्यूज सेम है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। इफ यू आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल एंड सिस्टम इज स्टेबल, सच सिस्टम इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन, क्वेश्चन इज चेक द स्टेबिलिटी एंड फाइंड k मार्जिनल, मतलब मार्जिनल वैल्यू ऑफ k, एंड ओमेगा मार्जिनल दैट इज मार्जिनल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द गिवन इक्वेशन, मैंने ऑलरेडी राउथ एरे बना के रखा है। सो कोएफिशिएंट्स आर 1, 10, 0, 7, k, 0। ये वैल्यू हम लोगों को रूल पता है, 7 इंटू 10 माइनस 1 इंटू k, दिस वैल्यू इज 1, 1 इंटू k अपॉन 7, तो ये आ गया 70 माइनस k अपॉन 7, ये 0, ये वैल्यू k आ गया। अब देखो स्टेबिलिटी के लिए चेक करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट k मार्जिनल एंड ओमेगा मार्जिनल। वी नो दैट सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब यहाँ पे पहले कॉलम में राउथ एरे के पहले कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होगा, मतलब इन अनदर लैंग्वेज एवरी टर्म इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे मस्ट बी पॉजिटिव। लास्ट टर्म देखो यहाँ पे सिर्फ k है, सो फर्स्ट कंडीशन आई विल राइट k ग्रेटर देन 0, क्योंकि सब वैल्यूज पॉजिटिव चाहिए, सो पहला कंडीशन आया k ग्रेटर देन 0। फ्रॉम द सेकंड आई कैन राइट द कंडीशन 70 माइनस k अपॉन 7 ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों जहां पे भी k है वो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये एक कंडीशन एज इट इज रखते हैं k ग्रेटर देन 0, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई विल राइट इट लाइक दिस 70 माइनस k, ये 7 यहाँ पे ट्रांसफर किया तो इट बिकम्स ग्रेटर देन 0,
देयरफॉर ये सिंप्लीफाई करेंगे, के भी यहाँ पे ट्रांसफर किया है, सिंपली इट बिकम्स के लेस देन 70। तो एक कंडीशन आ गया के ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन आ गया के लेस देन 70। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे के का एक वैल्यू देखो, के इज ग्रेटर देन 0, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, 0 लेस देन के और के ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन 70। दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम विल बी स्टेबल। अब के मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करना है, देखो मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए एक रो 0 का होना चाहिए, यहां पे ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है। सो if I want to calculate marginal value, that is marginal stability, जो remaining element है, मतलब एक वैल्यू, एक एलिमेंट इन द रो ऑफ s raised to 1 इज ऑलरेडी 0, दूसरा भी 0 करना है। सो लेट अस इक्वेट दिस वैल्यू 70 माइनस के अपॉन 7 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर आप लोगों के पास एक पूरा रो 0 का होगा then and then only system will be marginally stable। ये marginally stability के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये के सफिक्स में आई विल राइट के मार्जिनल, आई विल राइट इट लाइक दिस, के मार्जिनल इज इक्वल्स टू 0। तो ये 7 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो आंसर आएगा 70 माइनस के मार्जिनल इज इक्वल्स टू 0। 7 यहाँ पे ट्रांसफर किया, देयरफॉर के मार्जिनल इज इक्वल्स टू 70। दिस इज द वैल्यू ऑफ के मार्जिनल। अब ओमेगा मार्जिनल कैलकुलेट करना है। देखो ये के मार्जिनल हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये वैल्यू 0 कंसीडर करके। ओमेगा मार्जिनल के लिए इसके ऊपर का रो कंसीडर करना है एंड वी हैव टू जनरेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो इसके ऊपर करो, मतलब ये वाला, ये वैल्यू 7 है और ये कोएफिशिएंट s² है, सो इट बिकम्स 7s² प्लस के, जैसे मैंने बताया सिर्फ पहला वैल्यू 7 है, उससे ये वैल्यू को s² को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वैल्यू रिमेन्स एज इट इज, प्लस के इज इक्वल्स टू 0। के मतलब के मार्जिनल, उसका वैल्यू है 70, देयरफॉर आई विल गेट 7s² प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 7s² इज इक्वल्स टू माइनस 70, therefore s² is equals to -10। ये 7 यहाँ पे ट्रांसफर किया, -10। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, whenever you are getting value like this -10, be habituate of writing it like this, j² into 10। तो ये वैल्यू मैं ऐसे लिखता हूँ j² into 10, therefore इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो s आएगा यहाँ पे, s मतलब j ओमेगा लिखता हूँ या ओमेगा मार्जिनल ऐसे लिखता हूँ, ओमेगा मार्जिनल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ j² मतलब j इंटू रूट 10। देखो s² का स्क्वायर रूट लिया तो s आता है, उसको डिनोट करेंगे ओमेगा मार्जिनल से, एंड स्क्वायर रूट ऑफ j² इज j, आप लोग मैथमेटिकली स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस साइन आएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज रूट 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा मार्जिनल। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल characteristic equation of closed loop system is given by, this is the given equation, s³ plus 7s² plus 25s plus 39 is equals to 0. Determine number of roots which are lying at LHS of sigma less than -1. The question can be like this, ये given equation है and it can be like this, check the relative stability of a system about x is equals to -1। याद रखना ये दोनों वेरिएशंस के लिए आंसर सेम आएगा। सो इट इज अगेन बेस्ड ऑन द राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। जो गिवन इक्वेशन है, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, सिग्मा लेस देन -1, ट्रीट इट एज x लेस देन -1 जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल। तो जहां जहां s है गिवन इक्वेशन में, वहां x -1 पुट करना है। सो इन द गिवन इक्वेशन वेरेवर s इज देयर आई हैव पुट x -1, तो ये टर्म आ गया x -1 ब्रैकेट क्यूब, इसके लिए फिर 7s² के लिए ये आ गया। लाइकवाइज आई हैव पुट ऑल द वैल्यूज, जहां जहां s है वहां x -1 पुट किया। अब ये x -1 पुट करना है जहां जहां x है वहां पे, ये सिंप्लीफाई करना है। रिकॉल द रूल x -1 ब्रैकेट क्यूब, ये मैंने एक्सपांड करके रखा है फॉर फर्स्ट टर्म x -1 ब्रैकेट क्यूब के लिए x³ - 3x² + 3x - 1, ये फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्मूला, प्लस 7 इंटू x -1 ब्रैकेट स्क्वायर। x -1 ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांड करना है, x² - 2x + 1, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गया। फिर 25x - 1 मतलब 25x - 25 प्लस 39, ये लास्ट टर्म एज इट इज। ये जस्ट सिंप्लीफाई किया मैथमेटिकली, तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के लिए मैंने राउथ एरे बना के रखा है,
check the signs in the first column. There is no sign change in the first column. That means you can conclude it like this: system is relatively stable about x minus 1, or about x is equals to minus 1, or answer of this question is, since the system is stable, there is no sign change in the first column of an array, the number of poles lying at LHS will be 3. Why 3? Because the maximum power of equation, यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, so there are 3 poles, so 3 poles lie at the LHS, means no pole is lying at the RHS. ऐसे क्यों हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं? देखो हमने क्या लर्न किया, जब भी यहाँ पे साइन चेंज होता है, जैसे देखो 2 बार साइन चेंज हो गया, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं 2 poles are at RHS. There is no sign change means no pole is at RHS. तो 3 पोल्स है, 3 पोल्स कैसे आइडेंटिफाई किए? जैसे मैक्सिमम पावर है 3 इक्वेशन का, सो 3 पोल्स आर देयर, नो पोल्स एट आरएचएस क्योंकि साइन चेंज नहीं है, दैट मींस ऑल द 3 पोल्स आर एट एलएचएस. नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रूट लोकस. देखो रूट लोकस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो प्रैक्टिस, दिस इज अ क्विक रिवीजन. क्विक रिवीजन के लिए थोड़ा अलग न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं जो पहले हमने सॉल्व नहीं किया है. पहले की वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने एक लिस्ट भी रूल्स का दिखाया है, आप लोगों को क्रिएट किया है, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो टू गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ रूट लोकस. कंसिडर अ न्यूमेरिकल, ये अलग न्यूमेरिकल है जो इससे पहले हमने डिस्कशन नहीं किया है इस टाइप के न्यूमेरिकल. देयर आर 4 पोल्स क्योंकि 4 रूट्स है. कंसिडर अ न्यूमेरिकल एंड इट इज आस्क्ड टू स्केच द रूट लोकस फॉर दिस गिवन न्यूमेरिकल. अब यहाँ पे 4 पोल्स है, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड पोल्स. पहला टर्म है s, मतलब एज इफ इट इज s माइनस 0, दूसरा है s प्लस 1, s प्लस 3, s प्लस 4, तो पोल्स आर एट 0, s से रिलेटेड 0 पे, सेकंड पोल इज एट माइनस 1, थर्ड पोल इज एट माइनस 3, फोर्थ पोल इज एट माइनस 4. दीज आर द वैल्यूज ऑफ पोल्स. अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते वक्त पहला स्टेप हमेशा याद रखना, पोल्स मार्क करने हैं. रिकॉल द रूल्स. इस एक्सिस पे सिग्मा लिखते हैं, दिस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस जो है यहाँ पे j ओमेगा j ओहम लिखते हैं. अब पोल्स कहाँ पे? पहला पोल है 0 पे, तो ये पहला पोल मैं यहाँ पे मार्क कर दो ओरिजिन पे. सेकंड पोल इज एट माइनस 1, लेट अस से दिस इज द वैल्यू माइनस 1, यहाँ पे सेकंड पोल है. नेक्स्ट पोल इज एट माइनस 3, से दिस इज द वैल्यू माइनस 3, यहाँ पे एक प्रो मार्क किया. नेक्स्ट पोल इज एट माइनस 4, लेट अस से दिस इज माइनस 4. हमेशा पोल्स क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं. रिकॉल द रूल्स. अब देखो 0 का पोल ये ओरिजिन पे, उसके बाद के पोल्स कंसिडर करने हैं. मतलब -1 के लिए सोचना है. कैसे सोचना है? हम लोगों को ये करना है कि विच पार्ट ऑफ दिस डायग्राम इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, ये कैलकुलेट करना है. तो 0 का पोल स्किप करना है, नेक्स्ट पोल देखना है -1 का. यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, ऐसे सोचना है. इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में आरएचएस में कितने पोल्स हैं? देयर इज ओनली 1 पोल. 1 नंबर इज ऑड नंबर. कभी भी ऑड नंबर आता है तो दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस. तो ये पार्ट डार्क करना है, तो ये पार्ट मैं बोल्ड कर रहा हूं बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस. लाइकवाइज -3 का पोल कंसिडर करना है. यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, ऐसा सोचना है. अबाउट दिस लाइन देयर आर 2 पोल्स एट द आरएचएस, 1 और 2, ये 2 पोल्स है. 2 नंबर इज इवन नंबर, इवन नंबर है तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रूट लोकस. इसलिए -3 to -1 आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस लाइन बोल्ड. जो लाइन बोल्ड है मतलब रीडिंग से जो बनाया है दैट इज ओनली पार्ट ऑफ रूट लोकस. फिर -4 के लिए सोचना है. रिलेटेड टू -4 इफ आई विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन, देयर आर 3 पोल्स एट द आरएचएस. 3 पोल्स है, 3 नंबर इज ऑड नंबर, सो दैट इज पार्ट ऑफ रूट लोकस. सो -4 to -3 इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस. वो भी बोल्ड किया मैंने. अब इसके बाद कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, इसके राइट हैंड साइड में देयर विल बी 4 वैल्यूज. 4 इज इवन नंबर, तो इसके बाद -4 के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डार्क लाइन नहीं आएगा. सो व्हाटएवर आई हैव ड्रॉन द लाइंस विद रेडिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस. अब नेक्स्ट स्टेप, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है इससे पहले के वीडियोस में. डू वॉच द ऑल दोज वीडियोस, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूला का लिस्ट भी दिया है, स्टेप्स का भी लिस्ट दिया है. सो थीटा एन, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स. वैल्यू ऑफ एन इज 0, 1 अप टू p माइनस z माइनस 1. p मीन्स नंबर ऑफ पोल्स, z मीन्स नंबर ऑफ जीरोस. न्यूमरेटर में एक भी s टर्म नहीं है, सो देयर आर नो जीरोस. वैल्यू ऑफ p, नंबर ऑफ पोल्स इज 4, सो 4 माइनस 0 माइनस 1, मतलब n का वैल्यू आएगा 0, 1, 2, 3. इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है.
P मतलब 4, Z मतलब 0, N का वैल्यू पहले 0 पुट करना है, सॉल्व करना है, फिर 1 2 3, तो ये एंगल्स आएंगे 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, 315 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप सिग्मा सी कैलकुलेट करना है। सिग्मा सी इज सेंट्रॉइड। ये कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला इज समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स। देखो ये पोल्स माइनस है लेकिन इसमें जे टर्म नहीं है, मतलब इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो समेशन लेंगे सबका। सो इट इज 0 -1 -3 -4, ये आ गया समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरो। जीरोस नहीं है तो इट इज बिकम 0 डिवाइडेड बाय P मींस नंबर ऑफ पोल्स 4 माइनस Z मींस नंबर ऑफ जीरो 0, तो ये आंसर आएगा -8/4। ये 8 है, -8/4, सो दिस आंसर इज -2। इसका मतलब है सेंट्रॉइड विल बी एट -2। जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे आएगा, that is denoted by sigma c which is at -2। तो यहाँ पे मैं ये मार्क करता हूँ -2। अब देखो जो असिम्प्टोट्स है, ये 4 एंगल्स है, सेंट्रॉइड से असिम्प्टोट्स के डॉटेड लाइन बनाने हैं। पहला एंगल है 45 डिग्री, तो एंगल मेजर करना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। दिस लाइन विल बी एट एन एंगल 45 डिग्री। दूसरा एंगल है 135 डिग्री, तो एक्चुअली मेजर करके ड्रॉ करना है ये, सो इट इज 135 डिग्री। हमेशा डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। दिस सेकंड एंगल। थर्ड एंगल 225 डिग्री, ये लाइन ऐसा आएगा 225 डिग्री, मतलब यहां से मेजर करना है एंगल, ये वाला ऐसे ऐसे 225 डिग्री आना चाहिए। सो दिस इज 225 डिग्री। हमेशा एंगल मेजर करते वक्त ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऐसे मेजर करना है। लाइकवाइज नेक्स्ट एंगल इज 315 डिग्री, तो ये ऐसे मेजर करेंगे तो ये एंगल ऐसा आएगा। दिस इज 315 डिग्री। सो आई हैव ड्रॉन the dotted lines which represents the different asymptotes. Next part is calculation of breakaway point. Breakaway point calculate करने के लिए formula है 1 plus g of s into h of s is equals to 0. g of s is the given equation, h of s is not given. Consider unity feedback system, मतलब h of s 1 consider करना है। ये वैल्यू g of s का पुट किया। अब ये सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये LCM लेना है एंड आई हैव डायरेक्टली रिटर्न वैल्यू ऑफ के। जैसे देखो ये एलसीएम ले लेंगे, इक्वेट टू 0 करेंगे, फिर के का इक्वेशन निकालेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो यू विल गेट दिस इज द यू विल गेट दिस इक्वेशन ऑफ के। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब dk बाय ds। पहले टर्म का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एज इट इज 4s³। सेकंड ये दिस 8 + 3 24s², देन 19 + 2 38s एंड -12, ये डेरिवेटिव आ गया। अब कैलकुलेटर पे इसके रूट्स कैलकुलेट करना है। सो यू विल बी गेटिंग 3 रूट्स। अब ये चेक करना है उसमें से कौन से रूट्स, विच रूट्स आर लाइंग ऑन द रूट लोकस। कीप इन माइंड जो पार्ट रेडिंग से बनाया है, मतलब जो बोल्ड है, उसी पे ये पॉइंट्स अगर आ रहे हैं देन एंड देन ओनली दीज आर वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। जैसे देखो ये पॉइंट S1 इट इज -3.581, ये -3 है, ये -4 है, यहाँ पे आएगा समवेयर, तो ये एक वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है। दिस इज आई विल डिनोट इट बाय सिग्मा बी। बी मतलब ब्रेक अवे पॉइंट, सिग्मा B1 एक पॉइंट हो गया। दूसरा -0.418, -0.418 समवेयर हियर, तो ये होगा सिग्मा B2। ये भी दिस इज अगेन लाइंग ऑन द बोल्ड लाइन, सो इट इज अगेन वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। थर्ड देखो S3 which is -2, मतलब यहाँ पे आएगा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस क्योंकि ये बोल्ड लाइन नहीं है, सो दिस इज नॉट वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। सो आई हैव डिसाइडेड 2 वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, सिग्मा B1 एंड सिग्मा B2। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस। उसके लिए इक्वेशन कंसीडर करना है 1 plus g of s into h of s is equals to 0। हमने पहले के स्टेप में ऑलरेडी इक्वेशन ऑब्टेन किया था। उसके बाद राउ थ्योरम तैयार करना है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है जस्ट टू सेव द टाइम। फिर मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए वी हैव डिस्कस दिस टर्म, एक रो 0 का चाहिए, सो दिस टर्म शुड बी इक्वेटेड टू 0, तो ये टर्म 0 किया, उससे के मार्जिनल निकाला, के मार्जिनल इज 26.25। इसके ऊपर का मतलब ये वाला रो कंसीडर करना है। राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन 17.5s² प्लस 26 के मार्जिनल का वैल्यू 26.25, मतलब ये वैल्यू which is value of k marginal equals to 0। इससे s कैलकुलेट करना है, s is ±j1.22। this is the value of intersection with imaginary axis। तो ये वैल्यू पहले मार्क करते हैं ग्राफ पेपर पे। so this value is +j1.22 somewhere here 1.
-2 और -J1.22। अब देखो ग्राफ प्लॉट कैसे करना है, फाइनल ग्राफ। ये दो पोल्स है, ये बीच का पार्ट मैंने डार्क बनाया है, ये ब्रेक अवे पॉइंट है और ये इंटरसेक्शन है विथ इमेजिनरी एक्सिस। तो हमेशा एसिम्पटोट्स को पैरेलल ग्राफ आएगा, ब्रेक अवे पॉइंट से ऐसे ऐसे प्लॉट करेगा लाइक दिस, और ये एरो ऐसे दिखाएंगे, मतलब दिस टू पोल्स विल मूव टुवर्ड्स ब्रेक अवे पॉइंट एंड देन दे विल स्प्लिट अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये दो पोल्स ऐसे मूव करेंगे, ये ब्रेक अवे पॉइंट, और उसके बाद दिस विल बी इंटरसेक्टिंग विथ इमेजिनरी एक्सिस एट दिस 2 पॉइंट। लेकिन यहां पे कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, बट वी नो द बेसिक रूल, रूट लोकस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ये जैसे ये कर्व हमने बनाया रूट लोकस का, लाइकवाइज you need to draw a symmetric curve for this sigma b1 also. So this is the complete diagram of root locus if we are talking about 4 poles. याद रखना, अगर complex poles है तभी आप लोगों को एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज इन ऑल अदर न्यूमेरिकल्स wherever there are no complex roots, you don't have to calculate angle of departure and so on. So that's it for root locus and unit number 3 of the control system. So thank you, thanks a lot for watching this video.